Hello dear students, this is Ikhlaq sir physics. So my dear students, we are done with the lecture number 5 of the Newton's laws of motion. So this is our lecture number 6. Okay. So जो कल हमने टॉपिक पढ़ा था बेटा, let me revise that topic a bit. Okay. So कल का टॉपिक ये था motion by block on smooth inclined plane. This was the topic. Okay. Motion of block on smooth inclined plane. All right. Let me revise that topic a bit. ठीक है. So this is a block. जो मास ऑफ ब्लॉक है बेटा दैट इज गिवन टू यू, दैट इज इक्वल टू m. सही है. दिस आवर टाइप, इट इज टाइप 4, टाइप 5. ओके. मोशन ऑफ ब्लॉक ऑन द स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन. ऑलराइट. तो सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, हाउ मेनी फोर्स आर देयर ऑन दिस ब्लॉक. देयर आर ऑब्वियसली टू फोर्स ऑन द ब्लॉक. नंबर 1 इज व्हाट, नॉर्मल रिएक्शन, एंड नंबर सेकंड दूसरा फोर्स जो है बेटा दैट इज द वेट. The next what we have done is this, we have resolved this weight in rectangular components mg sin theta and mg cos theta. तो ये वाला एंगल थीटा होगा, ठीक है ना बेटा. तो ये आएगा बेटा mg cos theta. अब इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, सो दैट मींस स्ट्रेट अवे द नॉर्मल रिएक्शन जो होगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू mg cos theta. ठीक है ना बेटा, बिकॉज़ इस दिशा में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, हेंस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू व्हाट, दैट्स इक्वल टू mg cos theta. एंड नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन. अब इस दिशा में कौन सा फोर्स है बेटा, in this direction there is mg sin theta. Okay, so b part that we have to calculate acceleration. Newton's second law of motion, sum of all forces divided by sum of all masses. ठीक है बेटा. तो इस पे असल में दो फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन, वेट. Then we have resolved this weight in the rectangular components. Now out of these three forces, that is normal reaction, mg cos theta and mg sin theta, two will balance each other, that is normal and weight. तो बचा नॉर्मल एंड कंपोनेंट ऑफ वेट which is mg cos theta. तो बचा सिर्फ एक कंपोनेंट दैट्स mg sin theta and it's mg sin theta which is responsible for acceleration. Alright. तो देख लो बेटा क्या लिखेंगे यहाँ पे. So here I will write down mg sin theta and there's only one block, तो उसका मास है बेटा m and m is going to cancel. तो acceleration किसके बराबर आएगा बेटा, g sin theta. Now these two equations are very important. ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन. ठीक है बेटा. ये दो इक्वेशंस कल मैंने भी बोला था आपको बेटा, ये दो इक्वेशन आपको रात के 2 बजे भी याद होनी चाहिए. दैट एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन इज व्हाट, दैट इज g sin theta, and normal reaction of the block on the block is what, that is equal to mg cos theta. So we have calculated normal reaction and we have calculated what, we have calculated the acceleration. All right. ठीक है बेटा. तो अब आगे चलते हैं, we'll do some more examples on the block on inclined plane, motion of block on inclined plane. तो देख लो बेटा next. Now have a look. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा इसी पे, दैट इज you have to calculate the velocity of the block at the bottom of the inclined plane and the time taken by the block to reach the bottom of the inclined plane. ये है बेटा ऐसी, like this it is. This our inclined plane. तो ये है बेटा एंगल थीटा, this is given to you. ये मान लो बेटा this is a block whose mass is equal to m. ठीक है, it's a smooth inclined plane. Okay, so in NLM first we will assume that all the surfaces are smooth. Then the NLM second, when the friction will come into the picture, we will assume that the surfaces are rough. Okay, so till then we assume that all the surfaces are smooth, so there will be no force of friction at all. ठीक. तो अब यहाँ पे ध्यान रखो बेटा, concentrate here. अब ये ब्लॉक है बेटा, तो obviously नीचे की दिशा में एक्सेलरेट करेगा. Length of this is given, that's equal to s. Length of this inclined plane is given, that's equal to s. सही है बेटा. Okay, so acceleration नीचे की दिशा में कितना है, that is equal to what, g sin theta. Very important equation, g sin theta. The block starts from rest, इसका मतलब इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, that will be equal to 0. सही है बेटा. So acceleration initial velocity is 0, acceleration is called g sin theta and finally the block will reach here. आपको क्या निकालना है बेटा, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, what will be the velocity of this block at the bottom of the inclined plane or at the base of the inclined plane. ठीक है बेटा. तो अब देख लो, initial velocity is given, is that given, yes that is given. Acceleration तो हमें पता ही है, that's equal to g sin theta. सही है. Length is given, length of the inclined plane, that means the displacement of the particle of this block is equal to what, that is equal to s. ये भी सही है. तो इसकी फाइनल वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है. ठीक है ना बेटा. एक्सेलरेशन आप देख लो बेटा, that is constant. And when the acceleration is constant, so what does that mean? That means the motion of this block is a uniformly accelerated motion. And when that is uniformly accelerated motion, तो उसका ये मतलब है बेटा, we can use the equations of motion. So let's do that. Use the equation of motion. अब यहाँ पे आपको तो पता है, there are three equations of motion, v equal to u plus at, s equal to ut plus 1 by 2 at square, v square minus u square equal to as. कौन सी इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे बेटा, we will use v square minus u square equal to 2as. तो देखो बेटा, v square minus u square equals to 2as. ठीक है बेटा, हमें v निकालना है.
तो v स्क्वायर, बोलो बेटा व्हाट्स द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल, दैट इज इक्वल टू 0, तो यहां पे 0 आएगा। 2, बोलो बेटा एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक क्या है, that is g sin theta, already we have calculated that, let me write down here g sin theta. What about the distance covered, that's equal to s, हाँ तो velocity किसके बराबर आएगा, that will be equal to 2 into g sin theta multiplied by s. This is the velocity of the block at the base of inclined plane. If you are supposed to calculate velocity, so easily you can calculate, ठीक है बेटा। next अगर आपके पास value of theta is given like 30 degree, 60 degree, 45 degree, 37 degree, okay, you can put that value, अगर s दिया गया होगा you can put that value and get the answer for this velocity. All right, so we are done with the velocity. अब b part आप देख लो बेटा, b part अब हमें क्या निकालना है, the block will move from this point which is point A to this point which is point B, from point A to point B. Okay, so obviously the block will take some time to go from point A to point B, and we are supposed to calculate what is the time taken by the block. So how we can calculate the time taken, देख लो बेटा, आपके पास s दिया गया है, u is equal to 0, acceleration is given, you are supposed to calculate time. Obviously we will use the equation that is s equal to ut plus 1 by 2 at square. So let me use that equation, s equals to ut plus 1 by 2 at square. This is an equation of motion, kinematics में आपने पढ़ा होगा बेटा, ठीक है ना, या क्लास 9th की इक्वेशन है, ठीक। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है बेटा, दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन आर ट्रू ओनली इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। क्या यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हाँ कांस्टेंट है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे और यहाँ पे सेम होगा, व्हिच इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, थीटा इज कांस्टेंट, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ओके, सो लेट मी राइट इट हियर लाइक दिस, s इनिशियल वेलोसिटी इज 0, तो ये वाला 0 बनेगा बेटा, प्लस 1 by 2 a multiplied by t square, let me write it like this, a multiplied by t square, सही है बेटा। अब आपको t निकालना है, so it will be 2s divided by a, so t will be equal to 2s divided by a under root, this is the time, ठीक है बेटा। अब आपको यहाँ पे a का वैल्यू क्या पुट करना है, a is equal to g sin theta, let me put that and we are done with this question। तो easy question था बेटा, तो आराम से हमने कर लिया क्वेश्चन को, so that's equal to this 2s divided by 8, so that's equal to s divided by a के बाद क्या लिखा, g sin theta under root of this. This is the time taken by the block to reach the base of inclined plane. Hence we are done with this question. ठीक है बेटा, I am sure आपको आराम से क्वेश्चन, अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है बेटा। So easily we have done this. All right. Next, let's move to another example. देख लो बेटा another example क्या है, stopping distance and stopping time. What we are trying to do here is that I am trying to connect the kinematics with the NLM. Okay, there are some problems which you have done in the kinematics, and then those examples are to be repeated in the NLM. तो देखो बेटा, this is like a pinch of kinematics and a pinch of NLM. असल में एक प्रॉब्लम है क्या, आप अच्छे से ध्यान रखो बेटा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, दैट इज गिवन टू अस, सही है। ओके, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमारे पास दिया गया है, दैट इज इक्वल टू थीटा। ऑलराइट, नाउ द ब्लॉक इज एट द बेस ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। इनिशियली इसका मास जो है बेटा दैट इज इक्वल टू m, इट इज प्लेस्ड वायर एट द बेस ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। ऑलराइट, सही है। तो यहाँ पे ध्यान रखो बेटा, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दिस, आई एम गोइंग टू किक इट और टिकल इट फ्रॉम दिस पॉइंट। लेट मी किक दिस पार्टिकल इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो ये अपवर्ड जाएगा, सो इट विल हैव सम फर्स्ट ऑफ ऑल सम इनिशियल वेलोसिटी व्हिच इज इक्वल टू u, ठीक। आई विल like this, I will kick it in this direction, in the upward direction, तो इसकी कुछ velocity होगी, that will be equal to what, that will be equal to u. all right, अब यहाँ पे क्वेश्चन उठेगा बेटा, what about this particle, will it accelerate, will it retard or will it move with a constant velocity, ठीक है बेटा। तो उसके लिए एक चीज आपको याद रखना है, and that is simply like this, this is a golden rule, ये आप हमेशा के लिए याद रख लो। that's like this, number 1, अगर एक पार्टिकल चल रहा है बेटा, it's moving with some velocity, if the net force on this particle is equal to 0, then the particle will move with a constant velocity, इसकी velocity ना तो decrease होगी ना तो increase होगी, number 1। number 2, if a particle is moving with some velocity and then there is a force on this particle, net force on the particle, if this force is in the direction of velocity, parallel to velocity, then in that very case तब क्या होगा बेटा, this particle will accelerate, इसकी जो velocity वो बढ़ेगी, ठीक है। number 3 point is that particle is there, इसकी velocity है, इस पे force है, but this force is opposite the direction of velocity, तो उस वक्त क्या होगा बेटा, the particle will retard, ठीक है बेटा। so which of the following situations is here, यहाँ पे ध्यान रखो बेटा, velocity किस दिशा में है, upwards, हाँ upwards है,
बोलो बेटा इस ब्लॉक पर कितने फोर्सेस हैं? आप बोलोगे सर इस पर 2 फोर्सेस हैं। कौन कौन सा है? नॉर्मल रिएक्शन और वेट। ठीक है बेटा, फिर दिल ही दिल में आप ये काम कर लो बेटा, यू जस्ट रिजॉल्व दिस mg इन द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। कितने कंपोनेंट्स होंगे बेटा? mg cos थीटा एंड mg sin थीटा। mg cos एंड नॉर्मल रिएक्शन दे विल कैंसिल ईच अदर। सही है बेटा, बचा सिर्फ एक फोर्स, कौन सा? mg sin थीटा। हाँ, तो फोर्स इस पे है mg sin थीटा। अब अगर mg sin थीटा है, बोलो बेटा उस mg sin थीटा की डायरेक्शन क्या होगी? दैट विल बी डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। हाँ सही है बेटा, mg sin थीटा। क्लियर और नॉट? सो द फोर्स ऑन दिस विल बी इक्वल mg sin थीटा। अब आप मुझे बोलेंगे बेटा जो ये mg sin थीटा और वेलोसिटी है, और दे पैरेलल और दे एंटी पैरेलल? तो सीधी सीधी बात है बेटा, दे आर एंटी पैरेलल। जब एंटी पैरेलल होगा तो ये जो फोर्स है इट विल एक्ट एज अ रिटार्डिंग फोर्स। इट विल एक्ट व्हाट? रिटार्डिंग फोर्स। इट विल रिटार्ड द पार्टिकल। तो पार्टिकल का क्या होगा बेटा? इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे घटती जाएगी। सो फाइनली द पार्टिकल विल कम टू रेस्ट समवेयर हियर। द पार्टिकल विल कम टू रेस्ट। इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी बेटा? 0। उसके बाद इस पार्टिकल का क्या होगा, हमें उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद ऑब्वियसली द पार्टिकल विल रिटर्न बैक। ठीक है बेटा, लेकिन हमको क्या कैलकुलेट करना है बेटा? वी आर सपोज कैलकुलेट व्हाट इज द स्टॉपिंग डिस्टेंस, दैट इज दिस, यस, एंड व्हाट इज द स्टॉपिंग टाइम, दैट इज t। स्टॉपिंग डिस्टेंस होता क्या है बेटा? स्टॉपिंग डिस्टेंस का मतलब है टाइम टेकन बाय द पार्टिकल बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। एनालॉजी दिस, फॉर एग्जांपल आपके पास एक व्हीकल है बेटा, ठीक है, इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। नाउ यू आर अप्लाइंग द ब्रेक्स। व्हेन यू आर अप्लाइंग द ब्रेक्स, क्या इसकी वेलोसिटी घटेगी बढ़ेगी? घटेगी ऑब्वियसली। ठीक है बेटा, फाइनली द व्हीकल विल कम टू रेस्ट। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल बिफोर इट कम्स टू रेस्ट, दैट्स कॉल्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस, एंड द टाइम टेकन बाय द व्हीकल टू कम टू रेस्ट, दैट्स कॉल्ड स्टॉपिंग टाइम। ठीक है बेटा, लेकिन यहां पे जो फोर्स है दैट्स कॉल्ड mg sin थीटा। अब आपको क्या निकालना है? स्टॉपिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग टाइम। स्टॉपिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग टाइम तो ऑलरेडी आपने काइनेमेटिक्स में पढ़ा होगा, डेफिनेटली पढ़ा होगा। ठीक है बेटा, स्टॉपिंग डिस्टेंस किसके बराबर होता है? u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। स्टॉपिंग टाइम किसके बराबर होता है? u डिवाइडेड बाय a। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे होंगे सर हमने तो काइनेमेटिक्स पढ़ा ही नहीं है। ठीक है ना बेटा, सो लेट मी डिराइव दिस इक्वेशन। कोई बात नहीं है, तो यहां पे ध्यान रखो बेटा। लेट मी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कैलकुलेट द स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग टाइम। देखो बेटा होता क्या है, सो a फॉर स्टॉपिंग डिस्टेंस, लेट मी यूज दिस इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। सो व्हेन पार्टिकल फाइनली कम्स टू रेस्ट, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या होगी इसकी? 0, नंबर 1। नंबर सेकंड इज दैट जो a होगी बेटा दैट विल बी नेगेटिव बिकॉज़ इट इज रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब है बेटा नेगेटिव एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन। क्लियर? सो लेट मी पुट दीस वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। तो ये 0 आएगा, ये माइनस u स्क्वायर आएगा बेटा, और ये आएगा बेटा माइनस 2as। सही है, बिकॉज़ दिस इज नेगेटिव। माइनस एंड माइनस इज गोइंग टू कैंसिल। s हमारा यहां पे क्या निकलेगा बेटा? दैट इज इक्वल टू u स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस a। क्लियर हो गया बेटा? अब बताइए आप यहां पे when the block is on the inclined plane, blocks on the inclined plane, तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी बेटा? नीचे की दिशा में एक्सेलरेशन होगी। हाँ होगी एक्सेलरेशन नीचे की दिशा में। किसके बराबर होगी बेटा? g sin थीटा, जो मैंने आपको बोला था। ये इक्वेशन आपको रात के 2 बजे भी याद होनी चाहिए। यहां पे ध्यान रखो बेटा, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस किसके बराबर हमारा आएगा? दैट विल बी इक्वल u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। a के बदले हम क्या लिखेंगे बेटा? g sin थीटा लिखेंगे। हाँ ये हो गया बेटा, ठीक है ना? सो दिस स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग टाइम यू विल सी इट एज विल गो डीप इन द फिजिक्स। ये बहुत बार रिपीट हो जाएगा, वर्क पावर एनर्जी में रिपीट हो जाएगा। ठीक है ना बेटा? फिर रिपीट होगा बेटा ग्रेविटेशन में। ठीक है, फिर रिपीट होगा बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रिपीट होगा, फिर मैग्नेटिज्म में रिपीट होगा। सो मेनी टाइम्स इट विल बी रिपीटेड, बट जो ये a होगा इट विल कीप ऑन चेंजिंग। द वैल्यू ऑफ a विल कीप ऑन चेंजिंग। फॉर एग्जांपल अगर ये मोशन ऑन द ग्रेविटी है, a होगा g। ब्लॉक ऑन इंक्लाइन प्लेन है, a होगा g sin थीटा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्लियर और नॉट? ठीक है बेटा, तो हमारा a हो गया। सो s इज इक्वल टू u स्क्वायर बाय 2a। a के बदले हमने क्या लगाया? g sin थीटा। सही है बेटा? हाँ सही है। लेट्स डू अनदर एग्जांपल, दैट इज नंबर b। दैट इज नंबर b, पॉइंट नंबर b। हमें क्या निकालना है बेटा? स्टॉपिंग टाइम। यहां से लेकर यहां तक कितना टाइम लगेगा? सिंपल सी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम यूज करेंगे। व्हाट इज दैट? v इक्वल टू u प्लस at। आप बताइए बेटा व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी? 0 है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा? u। a है नेगेटिव, माइनस a इनटू t। हां सर, तो यहां से हम कैलकुलेट करेंगे बेटा t। u यहां जाएगा, बनेगा माइनस, तो इसका मतलब जो t आएगा वो आएगा u डिवाइडेड बाय a। हां कि ना? u यहां जाएगा, बनेगा माइनस, माइनस एंड माइनस विल कैंसिल, u डिवाइडेड बाय a विल बी इक्वल टू t। बोलो बेटा इस a के बदले हम कौन सा वैल्यू पुट करेंगे? वही वाला वैल्यू जो आपको रात के 2 बजे याद होना चाहिए, दैट इज g sin थीटा।
ठीक है बेटा। सो इजीली वी हैव कैलकुलेटेड व्हाट स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग टाइम। ठीक है बेटा। अगर अब आप काइनेमेटिक्स में आपने याद रखा, आपको सर ने बोला था वहां पे ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रख लो, u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, तो a के बदले आप वैल्यू क्या पुट करोगे, g sin थीटा, तो आराम से ये आंसर निकलेगा। अगर आपको t निकालना होगा किसके बराबर आएगा बेटा, u by a के बदले हम क्या लिखेंगे बेटा, g sin थीटा, तो आराम से हमने कैलकुलेट क्या किया, स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग टाइम। ठीक है बेटा। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो ये इक्वेशन है बेटा, a इक्वल g sin थीटा एंड नॉर्मल रिएक्शन इक्वल mg cos थीटा, put these two equations in the important part of your brain because they are very 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 important। ठीक है बेटा। अब आगे चलते हैं बेटा। सो दिस इज एग्जांपल नंबर 3, वी आर डन विद द एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 4 देखिए बेटा, जेईई मेन 2024 का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा। It is based on the same that you have to calculate time। देख लो बेटा, these are two blocks, angle 30 degree, this is mass m, angle is 45 degree, mass is same, angle of inclination is different। तो ratio of t1 is to t2, t1 is to t2 का मतलब क्या है बेटा, ये ब्लॉक यहां से यहां जाएगा, टाइम लगेगा t1, ये ब्लॉक यहां से यहां जाएगा, टाइम लगेगा t2। what you are supposed to calculate is t1 is to t2। सही है बेटा। हाँ, देख लो बेटा कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, we have calculated, we have done this। देखो बेटा कहां पे हमने ये क्वेश्चन किया है, we have done this, that is t is equal to what, under root of 2s divided by a के बदले हमने क्या लिखा, g sin थीटा। यही वाली इक्वेशन हम यूज करेंगे बेटा यहाँ। तो लेट मी राइट इट लाइक दिस, t is equal to under root of 2s divided by a। ये हमने कहां से डिराइव की, s equal to ut plus 1 by 2 at square से। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे बेटा, this is equal to root of 2s, a के बदले क्या लिखेंगे बेटा, g sin थीटा। अब आप देख लो बेटा, दिस t and sin थीटा हैव अ रिलेशन, दैट इज इनवर्स रिलेशन 1 by sin थीटा। हां कितना, यस। सो t is proportion 1 divided by sin थीटा। अगर आपको रेशियो निकालना है t1 divided by t2, वो आएगा बेटा अंडर रूट ऑफ व्हाट, sin थीटा 2 divided by what, sin थीटा 1। हां कितना, यस और नो बेटा, क्लियर हो गया, कंफ्यूजन है कहीं पे, इनवर्सली प्रोपोर्शन तो आएगा बेटा sin थीटा 2 divided by sin थीटा। नाउ लेट्स पुट द वैल्यूज हियर, देख लो बेटा, sin divided by sin, बोलो बेटा थीटा 2 और थीटा 1 क्या है, हां थीटा 1 है 45 डिग्री, लेट मी राइट डाउन हियर 45 डिग्री, थीटा 1 किसके बराबर है बेटा, दैट्स इक्वल टू 30 डिग्री। सही है। सो t1 divided by t2, बोलो बेटा आप ये sin 30 और sin 45 किसके बराबर होता है, sin 45 is 1 by root 2, sin 30 is 1 by 2, तो आएगा बेटा 2 by 1। sin 30 is 1 by 2, उसका रेसिप्रोकल होगा 2 divided by 1। तो इसका जो आंसर आएगा बेटा, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 2 raised to the power 1 by 2, आप ऐसे लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय दिस इज रूट 2 रूट। ठीक है बेटा, तो वो आएगा 2 raised power 1 by 4। क्लियर और नॉट बेटा, समझ में आया। ठीक है बेटा, तो इनका रेशियो जो आएगा t1 is to t2, वो आप लिख सकते हो बेटा ऐसे 2 raised power 1 by 2 is to 2 raised to the power 1 by 4। ठीक है बेटा, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो, बेस आर सेम, पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, वो भी आप कर सकते हो। लेट मी राइट इट डाउन हियर, देख लो यहाँ पे लिखेंगे बेटा ऐसे, ये भी इसका आंसर है, तो ऐसे भी आप लिख सकते हो बेटा, दिस इज व्हाट t1 divided by t2, बेस आर सेम, पावर्स आर सब्ट्रैक्ट, सो इट इज 2 raised power 1 by 2 minus 1 divided by 4। वो आप देख लो बेटा किसके बराबर आएगा, 4 1s are 4, 2 1s are 2। ठीक है, देख लो बेटा, कॉन्सेंट्रेट हियर, ठीक, 4 1s are 4, 2 1s are 2, 4 minus 2 is 2, 2 divided by 8, तो आएगा बेटा 1 by 4, so it is 2 raised power 1 by 4। तो यहाँ फाइनली लिखेंगे बेटा, that is t1 is to t2 will be equal to 2 raised power 1 by 4 is to 1। ये है बेटा इसका आंसर, दिस विल बी द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। ठीक है बेटा, तो आराम से हमने किया, कोई इसमें दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, t is simply inversely proportional 1 by sin theta, तो इसका मतलब t1 divided by t2 will be equal to sin theta 2 divided by sin theta। put the value and then play with the numbers and finally get the answer। alright, तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, जो ये वाला टॉपिक है बेटा, अगेन इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये है बेटा टाइप 6, लेट्स डू द टाइप 6। ठीक है, तो पहले भी मैंने आपको बोला बेटा दैट व्हाट आई हैव डन इज दैट, जो भी पूरा एनालिसिस है, इसमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आई हैव डिवाइडेड दीस प्रॉब्लम्स इनटू डिफरेंट सेक्शंस, इनटू डिफरेंट टाइप्स। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा बेटा, फॉर एग्जांपल देयर इज टाइप, लाइक फॉर एग्जांपल देयर इज टाइप 6,
अब इस टाइप 6 में देयर विल बी सम लाइक 10-12 एग्जांपल्स, ठीक है ना, एंड ऑल दोस 10-12 एग्जांपल्स विल बी डन बाय द सेम मेथड। तो इसका मतलब आपको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू लर्न दैट मेथड एंड देन अप्लाई दैट मेथड अगेन टाइम एंड अगेन, ठीक है ना, तो इजी होगा उससे, ठीक। ओके, सो उससे ये होगा बेटा द डाइवर्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट्स अ बिट कॉन्साइज्ड, दैट्स लाइक डिवाइडेड इन द डिफरेंट सेगमेंट्स, ठीक है ना। तो ध्यान रखो बेटा what we are supposed to calculate in the motion of connected bodies. Always the question will be like this: calculate a part acceleration of the blocks or acceleration of the system. एक ही बात है बेटा, acceleration of blocks or of system, one and the same thing. Okay, B parts that you are supposed to calculate tension in the string. You will have to calculate tension in string. Tension in string, ठीक है बेटा। जो ये है बेटा, this is motion of connected bodies. ब्रैकेट में लिखूंगा बेटा पुली सिस्टम्स, दीज आर पुली सिस्टम्स, ठीक, पुली सिस्टम्स, ठीक है बेटा। बिफोर गोइंग डीप इनटू द प्रॉब्लम्स वी हैव सम assumptions here. Let me write down those assumptions here. वो assumptions मैं यहाँ पे लिख के रखूंगा बेटा। There are some assumptions, okay, which we take into consideration, and those are safe approximations. Clear? तो देख लो बेटा, assumption number 1 जो होता है बेटा, वो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा है, that is जो string है, string, one assumption is about string, that is string जो है that is number 1 massless, string is massless, that is frictionless, that is frictionless, massless, frictionless and unstretchable, unstretchable, that is made of cotton, okay, its length remains constant, ठीक है, number 1. Number 2 is that assumption about the pulley. Assumption about pulley is that the pulley is massless. Pulley is what? Massless, ठीक है बेटा। यहाँ पे क्या चीज है बेटा, देखो जो ये पुली है इसका तो मास होगा ही होगा, ठीक है ना कुछ तो मास होगा, but when we compare the mass of the pulley with the block, that will be very very small. So this is safe approximation. We can easily neglect the mass of the pulley compared to the mass of the block. So it is massless. It is what? It is frictionless. Massless and frictionless pulley, ठीक है बेटा, that's it. Okay. अब अगर इसमें फ्रिक्शन होगा तो ये एनएलएम का क्वेश्चन नहीं है, ये रिजिड बॉडी डायनेमिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। अगर इसमें मास होगा तो ये एनएलएम का क्वेश्चन नहीं है बेटा, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देख लो बेटा, we will do in this very variety, that's motion of connected bodies, the example number first. Let's do example number first. Concentrate here बेटा, example number first, आप यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखेंगे बेटा। example number first, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कहां से मैं स्टार्ट करूंगा बेटा, हाँ यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद दिस, विद द इजीएस्ट क्वेश्चन फर्स्ट, लाइक दिस इट इज। तो ये हमारे पास है बेटा एक पुली, दिस इज अ पुली, ऑलराइट, और ये है बेटा हमारे पास एक ब्लॉक। लेट मी स्टार्ट विद दिस, ठीक। तो ये है बेटा ऐसे, एंड दिस इज अनदर ब्लॉक, दिस इज अनदर ब्लॉक, ऑलराइट, ठीक। अब इसका मास मान लो बेटा दैट्स इक्वल टू 6 kg, इसका मास मान लो बेटा 4 kg, क्लियर, ठीक है बेटा। और आपको कैलकुलेट क्या करना है, यू आर सपोज्ड टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड द टेंशन। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट व्हाट आई विल डू इज दिस, यहाँ पे आप अच्छे से ध्यान रखना बेटा, अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है, देयर इज अ डायरेक्ट वे टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन, वो मैं आपको बताऊंगा बेटा। देखो देयर इज जनरलाइज्ड टेक्निक, ठीक है बेटा, एंड अ वेरी इजी हैंडी टेक्निक जो आप ऑलवेज यूज कर सकते हो, लाइक दिस। If you want to calculate acceleration, use Newton's second law of motion, sum of all forces divided by sum of all masses. Sum of all forces divided by sum of all masses. लेकिन इसके अलावा एक जुगाड़ टेक्निक है बेटा, वो ये है, देख लो, वो ये है। I will write it like this: चलाने वाला फोर्स, क्या लिखा हमने, CWF क्या है बेटा, चलाने वाला फोर्स। चलाने वाला फोर्स means that force which is the driving force, that's called चलाने वाला फोर्स, माइनस रोकने वाला फोर्स, रोकने वाला फोर्स divided by total mass of the system, summation of all masses. You will see that this is very handy technique. With no time, even orally you can do the questions. पेन चलाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी बेटा। Number 1. Number 2 is that if you want to calculate tension, अब अगर आपको टेंशन निकालना है तो कैसे टेंशन कर लोगे कैलकुलेट, make a free body diagram for one block, apply F equal to ma, calculate tension। वो मैं यहाँ पे लिखूंगा बेटा, make FBD for a block, make FBD for a block, एक ब्लॉक के लिए आपने FBD बनाई, हाँ बनाई, ठीक। then apply F equal to ma, and calculate tension, क्लियर हो गया बेटा, सिंपल सा टेक्निक है, ठीक है।
विद नो टाइम यू कैन डू दिस, ओके। सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना है बेटा, F इक्वल टू m ही यहाँ पे है, तो कोई फोर्स होगा विच इज पैरेलल टू एक्सेलरेशन, कोई तो फोर्स होगा विच इज अपोजिट टू एक्सेलरेशन। टेक दैट फोर्स पॉजिटिव विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। फोर्स पैरेलल टू acceleration is taken as positive and force anti-parallel to acceleration is taken as negative, this is minus, ठीक है बेटा। so this is the simplest technique to solve these problems, ठीक है ना बेटा, this is the simplest technique to solve the problems, ठीक। और हम always how we learn the physics, what's the way to learn physics, always there is this generalized way. We first of all learn a technique, then we'll do example number 1. Example number 1 will not be that clear to you, it will be a bit blurred. Example number 2 थोड़ा सा और clear हो जाएगा. Example number 3, 4 there will be more clear. So if you want to learn physics, do as many examples as you can, that is, do as many problems as you can. The concept becomes clearer, that fog that vanishes. Alright, तो देखो बेटा, so concentrate here, यहाँ पे ध्यान रखो बेटा. So this is here what, this is for example block A and this one is block B. Alright, ठीक है बेटा. Okay, calculate क्या करना है हमें, what we are supposed to calculate. Number 1 is A part acceleration of the blocks, B part tension in the string, C part is that you have to calculate force on the pulley. FP is the force on this pulley exerted by the string. ठीक है बेटा. Okay, first and foremost don't apply any physics, just apply your common sense. आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, जो ये ब्लॉक A है, जो ये ब्लॉक B है, ये किस दिशा में एक्सेलरेट करेगा. The common sense says to me that the block A will accelerate downwards with acceleration A, isn't it? And the block B as a result of which will accelerate in the forward direction with acceleration A. Acceleration दोनों blocks की same होगी. क्यों same होगी? Reason is that the two blocks are connected by the same string. As simple as that. यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही string है बेटा. तो अगर इस पॉइंट की acceleration होगी 10, तो इस पॉइंट की भी acceleration क्या होगी 10. सही है ना? Now first and foremost you are supposed to calculate acceleration. तो बोलो बेटा इस पे चलाने वाला फोर्स कौन सा है? What is the driving force for the system? तो चलाने वाला फोर्स है बेटा इसका weight, that is 6 into g. 6 tens are 60 न्यूटन. ये 60 न्यूटन बनेगा बेटा चलाने वाला फोर्स. ठीक है बेटा, क्या बनेगा बेटा? चलाने वाला फोर्स. This will be चलाने वाला फोर्स. ठीक है बेटा. क्या यहाँ पे कोई रोकने वाला फोर्स है? नहीं, कोई रोकने वाला फोर्स नहीं. अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे हाँ सर यहाँ तो 4 kg है, ये तो बनेगा रोकने वाला फोर्स. नहीं, मैंने पहले ही आपको बोला है बेटा ऑल द सरफेस आर स्मूथ इन द एनएलएम फर्स्ट. अभी हम फ्रिक्शन पे नहीं जा रहे हैं बेटा, सो फ्रिक्शन इज नॉट देयर. तो यहाँ पे कोई रोकने वाला फोर्स है ही नहीं. तो एक्सेलरेशन किसके बराबर आएगा बेटा? चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास. बोलो बेटा इसमें चलाने वाला फोर्स कितना है? दैट इज 60. क्या कोई रोकने वाला फोर्स है? नहीं. डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है बेटा? 6 plus 4 is equal to 10. 60 by 10 is equal to 6 meter per second square. That's it, the problem is done. Easily आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है बेटा, so we are done with the acceleration. अब इसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है बेटा? टेंशन. क्या कैलकुलेट करना है? टेंशन. देख लो बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे टेंशन होगा बेटा T and the tension string here that will be equal to T. ठीक है बेटा, so tension will be what? That will be equal to T. Now what we are supposed to calculate is the tension. अगर आपको टेंशन निकालना है तो आप क्या करेंगे बेटा? आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे. किसके लिए? यहाँ तो इस ब्लॉक के लिए, यहाँ तो इस ब्लॉक के लिए. अब वहां पे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है बेटा. अगर आप इस ब्लॉक के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो, यहाँ पे तो दो फोर्स है 60 और T, लेकिन यहाँ पे तो फोर्स है एक. ठीक है बेटा, एंड डीलिंग विद वन फोर्स इज ऑलवेज इजी कंपेयर्ड टू डीलिंग विद टू फोर्सेस. दैट्स नॉर्मल. ठीक है बेटा, सो लेट्स कंस्ट्रक्ट द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर दिस. बी पार्ट मैं यहाँ पे लिखूंगा बेटा. बी पार्ट देख लो बेटा, कॉन्सेंट्रेट किया. दिस ब्लॉक इसका मास है बेटा 4, आगे की दिशा में टेंशन दैट्स इक्वल टू T. इसकी एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट की, किसके बराबर निकला एक्सेलरेशन बेटा? दैट्स इक्वल टू 6. सो F इज इक्वल टू m into A. ओनली वन फोर्स टेंशन, मास into एक्सेलरेशन 4 6 are 24 न्यूटन निकला बेटा टेंशन. दैट्स इट, प्रॉब्लम इज डन. हो गया बेटा क्लियर? समझ में अच्छे से आया? नाउ नेक्स्ट इज दैट C part. यू आर सपोज्ड टू कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग ऑन द पुली. ठीक है बेटा, वेक्टर्स का थोड़ा मैं आपको दिला दूं यार. दैट इज अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं बेटा, टू वेक्टर्स A and A whose magnitude is same and the angle between them is 90 degree, उनका रिजल्टेंट होता है बेटा √2a. एंगल इज 60 डिग्री √3a. एट लीस्ट ये दो टेक्निक्स याद रखो बेटा. ठीक है, तो इस पे जो ये पुली है बेटा, इस पे दो फोर्स हैं. T नीचे की दिशा में
T इस दिशा में, in this towards left. Clear? What is the angle between these two strings? Obviously that's 90. तो इस पे जो फोर्स पड़ेगा बेटा that will be along this direction. This is FP. ये FP किसके बराबर होगा? This will be your √2 multiplied by T. क्या हमने T कैलकुलेट किया? 24. तो फोर्स ऑन द पुली जो है बेटा that's equal to 24 √2 न्यूटन. That's it. The problem is done. The problem is done. क्लियर हो गया बेटा? फिर से मैं ये वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट बता दो. वो ये है बेटा, अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं लाइक दिस, दिस इज A, दिस इज A, इन दो का जो रिजल्टेंट आएगा बेटा R, दैट विल बी इक्वल टू √2 into A. ये याद रखना है. 60 डिग्री एंगल होगा √3A, 120 डिग्री एंगल होगा A आएगा. तो कम से कम दो याद रखो बेटा, 90 डिग्री √2A, 60 डिग्री √3A, बार-बार ये रिपीट होगा. क्लियर हो गया बेटा यहां तक? ठीक है ना? तो मैंने आपको शॉर्टकट टेक्निक बोली, आपको एक्सेलरेशन निकालना है ना, चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स डिवाइडेड टोटल मास. टेंशन निकालना है, एक के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, F इक्वल टू ma लिख लो, वहां से टेंशन निकलेगा. क्लियर हो गया बेटा? यस आर नो? यस आर नो? ठीक है बेटा, लेट्स मूव अहेड, लेट्स डू एग्जांपल नंबर 2 ऑन दिस. देखो बेटा एग्जांपल नंबर 2, कंसंट्रेट किया यहां पे ध्यान रखो बेटा. एग्जांपल नंबर 2 हमारे पास क्या है? एग्जांपल नंबर 2 इज लाइक दिस. देखो बेटा, दिस इज अगेन हॉरिजॉन्टल सरफेस. यहां पे एक पुली है बेटा, यहां पे दो मासेस हैं. Here it is one mass and here is another mass. ठीक है बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक स्ट्रिंग है बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक. This is one string and this is here second string. दो स्ट्रिंग्स हैं बेटा हमारे पास यहाँ. ठीक है. So let's name these blocks. This is block A. Let's name this is block B. Let's name this is block C. अब इसका मास मान लो बेटा 5 kg. Mass of this equal to 3 kg and mass of this equal to 2 kg. What we have to calculate. ठीक है बेटा, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है बेटा? बोलो बेटा, हमारे पास कितनी स्ट्रिंग्स हैं? दो है. यहां से लेकर यहां तक, तो इसमें टेंशन मान लो बेटा T1. फिर यहां से लेकर यहां तक और एक स्ट्रिंग है बेटा, इसमें टेंशन मान लो बेटा T2. तो यहां पे टेंशन कितना होगा? T2. ये मैंने ऑलरेडी आपको बोला बेटा, द टेंशन थ्रूआउट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रिमेन्स कांस्टेंट. अगर एजम्पशन ये होगी दैट द स्ट्रिंग इज मासलेस, और थ्रेड होता है मासलेस, इसका मास बहुत कम होता है बेटा कंपेयर्ड टू मास ऑफ द फ्लो. ठीक. अब देख लो बेटा नेक्स्ट what we are supposed to calculate A part acceleration, B part tension T1, C part tension T2 and D part Z. We are supposed to calculate what is the force on the pulley. Clear or not? This is what we had calculated. लेकिन जब नीट और JW में क्वेश्चन आएगा बेटा, यहाँ तो उसमें कैलकुलेट करना होगा बेटा आपको एक्सेलरेशन या T1 या T2 या फोर्स ऑन द पुली. वन ऑफ द पार्ट्स यू आर सपोज्ड टू कैलकुलेट. क्लियर और नॉट? देख लो बेटा, कंसंट्रेट किया. सबसे पहले फिजिक्स को छोड़ दो, कॉमन सेंस अप्लाई कर लो. बोलो बेटा, ये ब्लॉक है, किस दिशा में एक्सेलरेट करेगा? सारे नीचे की दिशा में एक्सेलरेट करेगा. एक्सेलरेशन ए. क्लियर बेटा? चलाने वाला फोर्स कौन सा बनेगा? वो बनेगा बेटा इसका वेट 5 into g, 5 10 50 न्यूटन. अगर अब ये एक्सेलरेट नीचे करेगा बेटा, block B will accelerate towards right with the same acceleration and block C will accelerate towards right with the same acceleration because A and B are connected and then B and C are connected. Alright, तो आप आराम से एक्सेलरेशन निकाल सकते हो बेटा. इजीली वी कैन कैलकुलेट एक्सेलरेशन. तो A पार्ट आपका हो गया, दैट्स इक्वल टू चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास. चलाने वाला फोर्स कौन सा है बेटा यहाँ पे? हाँ कौन सा है? दैट्स इक्वल 50. क्या कोई रोकने वाला नहीं बेटा. डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना बेटा? 5 + 3 + 2 व्हाट्स दैट? 10. 50 डिवाइडेड बाय 10, एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी 5 मीटर/सेकंड स्क्वायर. सो दिस इज द एक्सेलरेशन, दैट्स इट. ठीक है बेटा. इसके बाद आपको कैलकुलेट क्या करना है? T1. क्या कैलकुलेट करना है बेटा? T1. तो इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बना लो बेटा. किसके लिए? ब्लॉक सी. दिस इज ब्लॉक सी, मास इज 2. सही है बेटा, मास इज 2. इसके फोर्स है आगे की दिशा में T1. इसका एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट किया. क्या निकला एक्सेलरेशन? 5 F equal to ma. ओनली वन फोर्स T1. मास कितना है? 2. 5 10. T1 निकला बेटा 10 न्यूटन. दैट्स इट. क्लियर हो गया कि नहीं? यस और नो? सी पार्ट देख लो बेटा, हमें क्या निकालना है? टेंशन T2. T2 के लिए, इसके लिए या इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बना लो बेटा, योर चॉइस. सो दिस इज ब्लॉक ए. बोलो बेटा, ब्लॉक ए का मास क्या है बेटा? 5. ऊपर की दिशा में कौन सा फोर्स है बेटा? T2. नीचे की दिशा में 5 10 50 न्यूटन इसका वेट है. 50 न्यूटन इसका वेट है. यस और नो? ध्यान रखो बेटा, दिस इज 50 न्यूटन. क्लियर? अब नीचे की दिशा में एक्सेलरेट कर रहा है और एक्सेलरेशन क्या निकला बेटा? दैट्स इक्वल टू 5. दैट्स इक्वल टू व्हाट? एक्सेलरेशन निकला 5. ठीक. तो क्या लगाएंगे बेटा? F इज इक्वल टू m into a. तो यहां पे लिखेंगे बेटा F इक्वल टू m into a. बोलो बेटा, हाउ मेनी फोर्स आ दिया? 2. कौन कौन सा? 50 T2. अभी मैंने आपको बोला बेटा,
take that force positive which is in the direction of acceleration and that force negative which is opposite, और net force on this equal 50 minus t2. तो यहाँ क्या लिखेंगे बेटा 50 minus t2 mass into acceleration 5 5s are 25. ठीक है बेटा 25 इधर t2 उधर, तो क्या आएगा बेटा 50 minus 25 is equal to what t2. तो बोलो बेटा t2 क्या आया, that's equal to 25 Newton. Clear? Have we calculated t1? Yes, we have calculated t1. Have we calculated this? तो यहाँ बेटा 10 Newton, यहाँ पे Newton. So have we calculated acceleration? That's 5 meter per second square. Clear बेटा? Now the d parts that you are supposed to calculate the force on the pulley, तो वो तो आराम से आएगा बेटा. This and this string make an angle of what 90 degree with each other. तो अगर ये 90 है तो फोर्स ऑन पुल्ली इस दिशा में होगा और फोर्स ऑन पुल्ली किसके बराबर होगा √2 multiplied by t. Let me write that here, that is force on the pulley will be equal to √2 और इसमें टेंशन कितना है t2. हाँ हमने कहीं पे t2 निकाला था कि नहीं निकाला था, हाँ that is 25. तो क्या आएगा बेटा 25 √2 न्यूटन. We are done with the force on pulley. Is that clear to you? ठीक है बेटा, अच्छे से समझ में आया? ठीक. So this is what we call a generalized technique for the connected bodies, for the motion of connected bodies. ठीक है बेटा. Example number 3 देख लो बेटा. Example number 3 हम यहाँ पे लिखेंगे. I will keep this example number 3 as home assignment for you. That's like this, and I'm sure you are enough capable that you can easily do this example. या आराम से कर सकते हो. एक तो ये ब्लॉक है और ये ब्लॉक है, ठीक है बेटा, और यहाँ पे एक ब्लॉक है. ठीक है, इसका मास मान लो बेटा 3 kg, इसका मास मान लो बेटा 2 kg, इसका मास है 5 kg. Clear or not? Accelerate, obviously it will accelerate in the down direction with acceleration a, downwards acceleration a, towards right acceleration a. यहाँ पे टेंशन मान लो बेटा t1, यहाँ पे टेंशन होगा t1, यहाँ पे टेंशन है t2. ठीक है, calculate what you are supposed to calculate a parts that you have to calculate acceleration, and b parts that you have to calculate tension t1, c parts that you have to calculate tension t2, and d parts that you have to calculate the force on the pulley. ठीक है बेटा, okay, ठीक. So this example you must be able to do this example. This will stay as a home assignment for you. ठीक है ना बेटा, चलाने वाला फोर्स होगा इसका वेट प्लस इसका वेट, ठीक, डिवाइड बाय टोटल मास. देन यू वांट टू कैलकुलेट t1, इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम. यू वांट टू कैलकुलेट t2, इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम. द प्रॉब्लम इज डन. दिस इज ब्लॉक A, ब्लॉक B, ब्लॉक C. सो ये बेटा आई एम श्योर यू कैन डू दिस. अगर आप किसी को नहीं आएगा बेटा, ठीक है ना, देन कमेंट इन दैट ऑन YouTube. ठीक है बेटा, तो मैं कल ये क्वेश्चन फिर दिखाता हूं. ठीक है, सो दिस विल स्केल द मेथड फॉर यू. लेट्स शो अनदर एग्जांपल, दैट्स एग्जांपल नंबर 4. एग्जांपल नंबर 4 आप देख लीजिए बेटा. एग्जांपल नंबर 4 देख लीजिए बेटा. एग्जांपल नंबर 4, तो एग्जांपल नंबर 4 ये है. देख, कंसंट्रेट हियर, लाइक दिस इट इज. देयर आर टू पुलीज नाउ. दिस इज पुली नंबर 1 एंड दिस इज द सेकंड पुली. क्लियर? यहाँ पे एक ब्लॉक है, यहाँ पे एक ब्लॉक है. देन कनेक्ट बाय स्ट्रिंग. अब यहाँ से स्ट्रिंग है बेटा, तो यहाँ पे और एक ब्लॉक है, लाइक दिस इट इज. ऐसे स्ट्रिंग है, फिर यहाँ पे एक और ब्लॉक है बेटा, ऐसे है. ऑलराइट, सो दिस इज लाइक अ टेबल. ओके, सो दिस one block is placed on the surface of this table, and then two blocks they are hanging. ठीक. अब मास मान लो बेटा, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक this mass as let's take this as 3 kg, and this mass as 2 kg, and ये वाला as 5 kg. क्लियर हो गया? So this is block A, this is block B, and this is block C. यहाँ पे टेंशन मान लो बेटा T1 है, तो यहाँ पे टेंशन कितना होगा? T1 ही होगा. यहाँ पे टेंशन मान लो बेटा T2, तो यहाँ पे टेंशन कितना होगा बेटा? That's equal to T2. क्लियर? तो कैलकुलेट क्या करना बेटा? Let me write down the question here. Calculate A पर acceleration, B पर आपको कैलकुलेट करना है बेटा टेंशन T1, C पर कैलकुलेट टेंशन T2, and D part that you have calculate the force on the pulley 1, then E part that you have calculate the force on pulley 2. क्लियर हो गया बेटा? This is the question. Clear or not? सबसे पहले step number first is that all the surfaces are smooth. When all the surfaces are smooth, next आपको क्या करना है बेटा? आपको कॉमन सेंस लगाना है और ये बोलना बेटा कौन सा ब्लॉक किस दिशा में जाएगा. बोलो बेटा A कहाँ से चलेगा? डाउनवर्ड्स से अपवर्ड्स. देखो बेटा, this is 3 kg, this is 2 kg. weight of this is greater than this, तो इसका मतलब ये तो एक्सेलरेट नीचे करेगा और ये वाला तो एक्सेलरेट ऊपर करेगा. with the acceleration same, that's equal to A because they are connected. This will accelerate towards right with acceleration A. ये नीचे जाएगा, ये आगे जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा. क्लियर और नॉट? ठीक है बेटा. अब आपको कैलकुलेट क्या करना बेटा? एक्सेलरेशन,
then tension, then the force on pulley. So procedure is exactly same. बोलो बेटा इस दिशा में कौन सा फोर्स होगा 3g that's equal to 30 न्यूटन. हाँ इस दिशा में कोई फोर्स होगा 2g what's that 20 न्यूटन. तो यहाँ पे आप दो फोर्स है बेटा 30 न्यूटन and 20 न्यूटन. See that 30 न्यूटन is parallel to acceleration isn't it. 20 न्यूटन is opposed to acceleration. अगर आप 30 न्यूटन है parallel to acceleration तो इसका मतलब जो ये 30 न्यूटन है बेटा ये बनेगा चलाने वाला फोर्स. क्या बनेगा बेटा चलाने वाला फोर्स. जो ये 20 न्यूटन है बेटा ये बनेगा रोकने वाला फोर्स. क्या बनेगा बेटा रोकने वाला फोर्स. एंड यू विल हैव टू कैलकुलेट व्हाट एक्सेलरेशन एंड देन टेंशन T1. okay you are supposed to calculate acceleration then tension T1 then tension T2. let me write down first of all let's calculate acceleration. देख लो बेटा acceleration किसके बराबर है चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास. ठीक है बेटा क्या कोई चलाने वाला फोर्स है वहां पे. हाँ है. कौन सा फोर्स है बेटा 30 न्यूटन माइनस व्हाट इज द रोकने वाला फोर्स दैट इज 20. बोलो बेटा इसमें टोटल मास ऑफ द सिस्टम कितना है दैट इज 3 plus 5 is 8 8 plus 2 is equal to 10. तो यहाँ क्या लिखेंगे बेटा 10. 30 minus 20 is 10 10 divided by 10 is 1 meter per second square. तो इसका जो acceleration निकला that's 1 meter per second square. We are done with the acceleration. Clear or not? अब आपको next क्या calculate करना है बेटा tension T1. क्या calculate करना है. In order to calculate tension T1 we will construct free body diagram for the 3 kg. तो ये है बेटा ब्लॉक इसका मास है 3 kg. नीचे की दिशा में एक्सेलरेट कर रहा है with what acceleration 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ऊपर की दिशा में एक फोर्स है बेटा T1. नीचे वाला फोर्स कौन सा है 3g दैट्स इक्वल 30 न्यूटन. यस और नो. तो क्या लगाएंगे बेटा न्यूटन सेकंड वाला लगाएंगे. व्हाट्स दैट F इक्वल्स टू m मल्टीप्लाइड बाय e. F इक्वल m मल्टीप्लाइड बाय e. अब बोलो बेटा जो ये ब्लॉक है इस पे कितने फोर्सेस हैं दो फोर्स हैं. कौन कौन सा है बेटा 30 न्यूटन एंड T1. अब पॉजिटिव कौन सा लेंगे द फोर्स व्हिच इज पैरेलल टू एक्सेलरेशन टेक दैट पॉजिटिव. The force which is anti-parallel to acceleration take that negative. तो क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे 30 minus T1. ठीक है बेटा 3 into 1 is 3. तो यहाँ पे 3 लिखेंगे. अब ये 3 यहाँ आएगा 30 minus 3 किसके बराबर आएगा बेटा T1 के बराबर. हाँ तो T1 क्या निकला बेटा 27 न्यूटन. So tension T1 comes out to be what 27 न्यूटन. Clear or not? Okay, so we are done with what we have calculated the tension T1. Let's try to calculate the tension T2. देख लो बेटा concentrate किया. अब tension T2 हम कैसे calculate करेंगे उसके लिए स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर खींचेंगे बेटा पहले then we'll calculate the tension T2. Okay? तो देख लो बेटा concentrate किया. अब आपको tension T2 निकालना है. क्या निकालना है tension T2. Okay, so A B हो गया. So C पर I will write down tension T2. Let me write it here. तो टेंशन T2 अगर आपको निकालना है तो जो ये ब्लॉक है इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो. दिस इज मास 2 kg. हाँ 2 kg है. ऊपर की दिशा में कौन सा फोर्स है बेटा दैट्स इक्वल T2. नीचे वाला फोर्स 2 10 20 न्यूटन. एक्सेलरेट ऊपर कर रहा है नीचे कर रहा है ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है बेटा किसके बराबर है एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. वी हैव कैलकुलेटेड दैट. तो क्या लगाएंगे बेटा यहाँ पे न्यूटन सेकंड का. हाँ न्यूटन सेकंड का क्या है बेटा शाबाश F इक्वल टू m into A. बोलो बेटा कौन सा फोर्स पॉजिटिव ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव. तो लिख लो T2 minus 20. अब इसके लिए मान क्या है बेटा 2 into 1 that's equal to 2 minus 20 वहां जाएगा पॉजिटिव बनेगा 20 plus 2 is equal to 22 न्यूटन. So we are done with the T2 टेंशन. क्लियर हो गया बेटा. So हमने निकाला बेटा T1 हमने निकाला T2. T1 क्या निकला 27. Let me write it here. This is T1 that's equal to what 27 न्यूटन. This is T2 what's that that's equal to 22 न्यूटन. 22 न्यूटन. ठीक है ओके. और एक्सेलरेशन भी हमने कैलकुलेट किया बेटा यहाँ पे ध्यान रखो आप. एक्सेलरेशन भी हमने कैलकुलेट किया. क्या निकला एक्सेलरेशन क्या निकला बेटा यहाँ पे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट 1. तो हो गया एक्सेलरेशन. ठीक है. अब क्वेश्चन बेटा इस पुली और इस पुली का फोर्स निकालना है. अभी तो मैंने आपको बोला दिस एंगल इज 90. अगर ये एंगल 90 है तो ये √2 आएगा. सो द फोर्स ऑन द पुली 1 विल बी इक्वल टू √2 T1. वो आप लिख सकते हो बेटा. ठीक है ना. फोर्स ऑन पुली 2 विल बी इक्वल टू √2 मल्टीप्लाइड बाय T2. फिर T1 किसके बराबर 27 और दिस 22. ठीक है बेटा. तो आराम से आपने ये क्वेश्चन भी किया. ठीक है. अगेन द टेक्निक इज सेम. टेक्निक आपको सिंपल याद रखनी है बेटा. इफ यू आर सपोज कैलकुलेट एक्सेलरेशन पहले आप देख लो बेटा इस सिस्टम में चलाने वाला फोर्स कौन सा है
और रोकने वाला फोर्स कौन सा है। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इक्वल चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। आराम से आप इवन ऑरली आप क्वेश्चन कर सकते हो बेटा। दिस इज 30, दिस इज 20, 30 minus 20 is 10, 10 divided by 10 is 1। ऑरली आप क्वेश्चन को कर सकते हो। फिर आपको टेंशन T1 T2 निकालना है, उसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम, इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम, इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम, वहां से T1 T2 निकला, ठीक है। लेकिन आउट ऑफ ऑल दीज पार्ट्स अगर नीट में क्वेश्चन आएगा, जेईई मेंस में क्वेश्चन आएगा, इनमें से सिर्फ आपको एक ही पार्ट करना होगा बेटा। आइदर यू आर सपोज्ड टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन, या तो T1 निकालना होगा या तो T2 निकालना होगा, ठीक है ना। ओके डन। सो दिस वाज एग्जांपल नंबर 4, दिस वाज एग्जांपल नंबर 4। लेट्स स्विच टू अनदर एग्जांपल। अभी हमारे पास 5 मिनट है बेटा, सो लेट्स स्विच टू अनदर एग्जांपल। देख लो बेटा अनदर एग्जांपल क्या है। नेक्स्ट एग्जांपल इज दिस। ओके लेट्स डू एन एग्जांपल ऑन द इंक्लाइनेड प्लेन। थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे बेटा, लाइक दिस इज, दिस इज इंक्लाइनेड प्लेन। जेईई मेंस का क्वेश्चन है बेटा, आए जेईई मेंस में, लाइक दिस इज, दिस है पुल्ली, यहां से एक ब्लॉक है बेटा और यहां से दूसरा ब्लॉक है, ठीक है, यहां से दूसरा ब्लॉक है, ऑलराइट, ठीक। अब ये वाला एंगल दिया गया बेटा, दिस एंगल इज थीटा व्हिच इज इक्वल टू 30 डिग्री। एग्जैक्टली द डेटा इज सेम। दिस एंगल इज व्हाट, दिस इज 30 डिग्री। दो ब्लॉक्स हमारे पास है बेटा। इस ब्लॉक का मास आप लीजिए, फॉर एग्जांपल दिस इज इक्वल टू 8 kg, दिस इज इक्वल टू 2 kg। लेट्स टेक इट लाइक दिस। क्लियर। तो क्वेश्चन क्या है बेटा, व्हाट इज द क्वेश्चन? कैलकुलेट। ए पार्ट आपको कैलकुलेट क्या करना है बेटा, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, एंड बी पार्ट दैट यू आर सपोज्ड टू कैलकुलेट टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, एंड सी पार्ट दैट यू हैव कैलकुलेटेड द फोर्स ऑफ द पुली। दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम सेशन। तो यहां पे अच्छे से ध्यान रखो बेटा, कंसंट्रेट किया। देखो बेटा, so this was example number 4, so let me write down this as the example number 5, ठीक है बेटा। तो देखो कंसंट्रेट किया। दिस इज 8 kg। पहले आप देख लो बेटा, हाउ मेनी फोर्स आर देयर ऑन दिस ब्लॉक। इस पे दो फोर्स होंगे, कौन कौन सा? वेट 8g, 8 into 10 is equal to 80 न्यूटन। यस और नो? ठीक है ना बेटा, 80 न्यूटन विल बी द फोर्स ऑन दिस ब्लॉक। अच्छा, इस दिशा में एक फोर्स होगा बेटा, इस दिशा में कौन सा फोर्स होगा? दैट विल बी कंपोनेंट ऑफ वेट। ऑलरेडी हमने पढ़ा बेटा इंक्लाइन प्लेन, दैट विल बी कंपोनेंट ऑफ वेट, एंड व्हाट दैट विल बी इक्वल टू 2g sin थीटा के बदले 30 डिग्री। sin 30 किसके बराबर होता है? 1/2। 2 and 2 will cancel, तो ये निकला बेटा g that is equal to 10, तो ये निकला 10। क्लियर। सो हाउ मेनी फोर्स आर देयर? 2 फोर्सेस। कौन कौन सा? इस पे एक फोर्स है बेटा 80 न्यूटन, ऊपर की दिशा में टेंशन होगा, इस दिशा में टेंशन होगा, ये सब नो, ठीक है बेटा। इस पे mg cos और नॉर्मल रिएक्शन दे विल बी इक्वल एंड अपोजिट, दे विल कैंसल। तो बचे सिर्फ दो फोर्सेस, दैट इज 80 न्यूटन एंड 10 न्यूटन। नाउ इट्स ऑब्वियस दैट 80 न्यूटन इज ग्रेटर देन 10 न्यूटन। तो इसका मतलब ये नीचे एक्सेलरेट करेगा विद द एक्सेलरेशन a, और ये ऊपर एक्सेलरेट करेगा विद द एक्सेलरेशन a। क्लियर और नॉट? अब आप मुझे बोलो बेटा, जो दो फोर्स है 80 न्यूटन और 10 न्यूटन, इनमें से चलाने वाला फोर्स कौन सा बनेगा बेटा? दैट्स ऑब्वियस, 80 न्यूटन विल बी चलाने वाला फोर्स, ठीक है ना बेटा, बिकॉज़ दिस इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द सिस्टम। क्या कोई यहाँ पे रोकने वाला फोर्स है? हाँ, रोकने वाला फोर्स तो है। वो कौन सा है बेटा? दैट इज 10 न्यूटन, एंड वी आर डन विद द प्रॉब्लम। एक्सेलरेशन आपको निकालना है, चलाने वाला फोर्स 80 माइनस रोकने वाला फोर्स 10। 80 माइनस 10 कितना हो गया बेटा? 70। 8 + 2 is equal to 10, 70 divided by 10 that's equal to 7। मतलब जेईई मेंस का क्वेश्चन और भी कर सकते हो, ठीक है ना बेटा। तो देख लो बेटा, एक बार एक्सेलरेशन आपको कैलकुलेट करना है, चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, ठीक है बेटा। तो ये टेक्निक जो है बेटा, इट मेक्स द प्रॉब्लम रिडिकुलसली इजी। तो चलाने वाला फोर्स वहां पे देख लो बेटा, दैट्स इक्वल 80, एंड व्हाट्स रोकने वाला फोर्स? दैट्स इक्वल 10। टोटल मास कितना है बेटा? दैट्स इक्वल टू 10। टोटल मास जो है यहाँ पे दैट्स इक्वल टू 10। व्हाट्स दैट इक्वल? दैट्स इक्वल टू 10, ठीक। 80 minus 10 is 70/10, that's equal to 7 meter per second square will be the acceleration। तो हो गया बेटा एक्सेलरेशन आपका, ठीक है। ओके, सो लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट व्हाट टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ बेटा, यहाँ पे ध्यान रखो। टेंशन इन द स्ट्रिंग, दिस इज ब्लॉक whose mass is 8, नीचे की दिशा में एक्सेलरेशन दैट्स इक्वल टू 7, ऊपर की दिशा में फोर्स दैट्स इक्वल टू t, नीचे की दिशा में इसका वेट 80, f इक्वल टू मान, f इक्वल टू मान, ठीक है बेटा। बोलो बेटा कितने फोर्सेस? 2। 80 माइनस t, 80 माइनस t, बोलो बेटा 8 7 are 56, t आपको निकालना है, वहां ले जाओ। 80 माइनस 56 इज इक्वल टू t। बोलो बेटा 80 माइनस 56 कितना होता है? दैट्स इक्वल टू व्हाट? दैट्स 24। तो t क्या निकला बेटा? दैट्स इक्वल टू 24 न्यूटन। सो टेंशन स्ट्रिंग इज इक्वल टू 24 न्यूटन। हो गया बेटा आपका बी पार्ट। नाउ सी पार्ट दैट यू हैव टू कैलकुलेट फोर्स ऑन द पुली। यहां पे ध्यान रखो बेटा, यहां पे ध्यान रखो, ये एंगल किसके बराबर?
30 के बराबर। बोलो बेटा ये एंगल आपको क्या लग रहा है, किसके बराबर होगा, 90 के बराबर है। अगर ये 30 है ये 90 है, बोलो बेटा ये कितना होगा, सर ये 60 होगा। क्यों, बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, 60 प्लस 30 इज 90, 90 प्लस 90 इज 180। ठीक है ना बेटा। अब अगर ये 60 है तो बताइए बेटा इन दो के दरमियान एंगल कितना है, 60। वेक्टर्स में तो आपने पढ़ा होगा, इफ देयर आर टू वेक्टर्स इंक्लाइनिंग टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, उन दो का रिजल्ट होता है √3 मल्टीप्लाइड बाय वन वेक्टर। तो इनका जो इस पे जो फोर्स आएगा बेटा इस दिशा में आएगा, दैट विल बी इक्वल टू √3 मल्टीप्लाइड बाय t। लेट मी राइट दैट हियर, दैट इज द फोर्स ऑन द पुली इज इक्वल टू व्हाट, √3 into t, बिकॉज़ एंगल इज 60। तो टेंशन किसके बराबर, 24 के बराबर, √3 के बदले √3 न्यूटन। दैट्स इट। ठीक है बेटा, आई थिंक इट्स अनफ फॉर टुडे। ओके, सो सी यू टुमारो with another mesmerizing lecture of physics. Okay, so take care.